Welcome students to another class of animal behavior, and we are basically studying about the broader prospect of learned behaviors in animals. What we have discussed until now are different categories of learned behaviors. Previously, we have discussed about associative learning, and we discussed two major types of associative learning, that are classical and operant conditioning. Today, proceeding with our chapter, we will discuss about another type of learned behavior, that is insight learning. Insight, as its name indicate, उर्दू में इसको कहते हैं बसीरत, इसका अगर हम लफ्ज़ी तर्जुमा करें, और इसके सिनोनिम्स अगर हम देखें तो इनसाइट मीन इंटरनल विजडम और इनसाइड इंटेलिजेंस, कोई भी आप नाम दे सकते हैं इसको. एनी हाउ, what is insight learning? For that we have to relate it to our previous two types of behavior, that is classical and operant conditioning. So let's kick off with this topic and study what it reads. So classical and operant conditioning are often referred to as simple associative learning, implying that some animals are capable of other more complex forms of learning. Although classical and operant conditioning जो है that are simple forms of associative learning, लेकिन कुछ animals are found they are capable of some more complex form of learning, not just simple associative learning, that दो stimulus को associate करके एक response show करना, and like trial and error learning. यहाँ पे क्या होता है कि one of these behaviors, these more complex forms of learning of these more complex behaviors, one of these is what Thorpe and others have called insight learning. अच्छा, अब insight learning क्या है? Now there we are adding some spiritual substance to the topic, like लर्निंग में कुछ स्पिरिचुअलिटी की तरफ हम जा रहे हैं. अगर मैं इफ़ आई एम नॉट गेटिंग इट रॉन्ग, जो वर्ड स्पिरिचुअलिटी का मैं यूज़ कर रहा हूँ, लाइक यहाँ पे कुछ इंटरनल विजडम, इनसाइट, बसीरत और अंदर की जो विजडम है वो यूज़ हो रही है, जिसको आप एक्सपेरिमेंटली और फिज़िकली उसको आप डिटर्मिन नहीं कर सकते, उसको आप मेजर नहीं कर सकते. अब हम पढ़ेंगे कैसे. लाइक insight refers to the rapid apprehension of solutions to the problem, too rapid to be due to normal process of trial and error. क्या कहते हैं? insight वो rapid apprehension of solutions हैं to the problem, कि कोई problem आई और animal ने बहुत rapidly उसको apprehend किया. apprehension means हालात और सिचुएशन को जांच करके उसको उसके लिए कोई अंदर से सलूशन ढूंढ लेना. ठीक है. एप्रीहेंशन मीन परसेप्शन ऑफ सिचुएशन को कहते हैं, लाइक हालात या मौके का इदराक करना, या उसको क्या करना, उसको जांच करके और एक सलूशन पे पहुंचना. दैट सलूशन is too rapid to be due to normal process of trial and error. वो solution इतना rapid होता है कि वो normal process of trial and error में impossible है, because normal trial and error learning, जैसे हमने operant conditioning को हम trial and error learning कहते हैं, तो उसमें trial and error में time लगता है. Animal have to have repeated exposure with that particular situation in order टू elicit a response. यहाँ पे क्या है कि एनिमल बहुत जल्दी किसी सोल्यूशन का प्रॉब्लम आउट ऑफ नोवेयर
अंदर से ही अपने इंटरनल विजडम से उसका सोल्यूशन ढूंढ लेता है. दैट्स वाई साइंटिस्ट्स कॉल इट इनसाइट लर्निंग, लाइक दिस इज कमिंग फ्रॉम समथिंग inside wisdom. Okay, it is equivalent to our own aha experience, where the answers to a problem occurs to us in a flash, even though we have been wrestling with it fruitlessly for days. ऐसा होता है ह्यूमन के साथ. अगर हम अपने बिहेवियर के साथ इसको कनेक्ट करें, सो बाज़ औक़ात हम किसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं फ्रूटलेसली, एंड आउट ऑफ नोवेयर सडनली विदाउट एनी पर्टिकुलर एक्सपीरियंस हम क्या करते हैं कि हमारे माइंड में वो चीज़ क्लिक कर जाती है. ठीक है, वो सोल्यूशन जो है वो अचानक से माइंड में आ जाता है. सो दिस इज़ लाइक इनसाइट. ठीक है, लर्निंग. हाउएवर, व्हाइल रिस्पॉन्सेज मे बी टू रैपिड फॉर फिजिकल ट्रायल एंड एरर प्रोसीजर्स टू हैव टेकन प्लेस, द एनिमल मे हैव रन थ्रू ट्रायल ऑप्शंस क्विकली इन इट्स हेड. अच्छा, अब जो है ये रिस्पॉन्स, इट मे बी टू रैपिड फॉर फिजिकल ट्रायल एंड एरर. फिजिकल ट्रायल एंड एरर क्या होता है कि फिजिकली एनिमल tries one thing and it gets no result, and then try again. Now अब ये जो इनसाइट लर्निंग, अब जब हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे इसकी तो आपको समझ आएगा कि ये इतने रैपिड रिस्पॉन्सेज होते हैं कि जो फिजिकल ट्रायल एंड एरर्स जिसमें डेज एंड वीक्स एंड मंथ्स लग सकते हैं, वो यहाँ पे क्या है, उतना टाइम नहीं लगता. सो यहाँ पे क्या है कि एनिमल मे हैव रन थ्रू ट्रायल ऑप्शंस क्विकली इन इट्स हेड. तो माइंड के अंदर भी, अपने हेड के अंदर ही एनिमल ट्राइज सम सॉल्यूशंस, एंड विदाउट एक्सपेरिमेंटिंग इट फिजिकली द एनिमल गेट इनटू द सॉल्यूशन. सो इफ वी एक्सेप्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ मेंटल ट्रायल, यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है मेंटल ट्रायल एंड एरर. आप इसको कह सकते हैं कि इनसाइट लर्निंग is a mental trial and error without wasting time in physical trial and errors. ठीक है, we acknowledge that the animal has at least some capacity for a reason, a capacity that is doubtfully distinguishable from insight. तो हम ये कह सकते हैं कि अब ऐसा तो है because it is found in animals और इसको पाया गया है. So now we can say that एनिमल्स के अंदर एटलीस्ट सम कैपेसिटी ऑफ रीज़न होती है. रीज़न यहाँ वो वजह वाला रीज़न नहीं है. रीज़न मीन लॉजिक एंड रीज़न वाला रीज़न के जिसमें इंटेलिजेंस, एविडेंस और लॉजिक यूज़ हो. तो एनिमल लॉजिकली थिंक कर सकते हैं. ठीक है, सो ये कैपेसिटी आप इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते इनसाइट से. ठीक है, ये इनसाइट ही है. इस सेंटेंस का मतलब ये है कि ये जो लर्निंग है, दिस इज़ बेसिकली कैपेसिटी एनिमल की अपनी अंदर की कैपेसिटी होती है फॉर रीज़न एंड लॉजिक, एंड दैट वी कॉल मेंटल ट्रायल एंड एरर. ऑन दैट बेसिस एनिमल रिस्पॉन्ड टू अ problem and result end up in a solution. So several well-known experimental paradigms have been used to assess reasoning and insight. अब जो reasoning and insight learning है, इसके लिए various experimental प्रोसीजर्स फॉलो किए गए हैं. बहुत एक्सपेरिमेंटेशन हुए, लेकिन बहुत एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल इन एक्सपेरिमेंट इन दिस रिगार्ड इज़ बाय वोल्फगैंग कोहलर. वेरी इम्पॉर्टेंट, वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट with chimpanzees. He studied a captive group of chimpanzees in Tenerife during the First World War. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम था और जब ये एक्सपेरिमेंट हो रहा. तो बेसिकली अब इस एक्सपेरिमेंट में है कि हम इसके टेक्स्ट में नहीं जाते. आपने बाहर इसके बारे में सुना है, पढ़ा है, हम इसको ज़रा रिपीट करते हैं. तो बेसिकली क्या था कि कोहलर ने चिंपैंजीज़ को एक टेस्ट में डाला, एक ट्रायल में डाला, दैट बनानाज वर हैंग्ड फ्रॉम द रूफ. और जो चिंपैंजीज़ थे, फर्स्ट उनको केजेस में रखा गया और फ्लोर पे उनको फूड रखा गया और कुछ स्टिक्स रखे गए. तो दे वर ट्राइंग टू रीच आउट टू दैट फूड बट दे फेल्ड टू दैट. इसी तरह कुछ चिंपैंजीज़ को रख के रूम में और कुछ बॉक्सेस रखे गए और सीलिंग से बनानास को सस्पेंड कर दिया गया. दे वर अनएबल टू रीच. क्या हुआ कि चिंपैंजीज़ ने डिफरेंट क्या किए, एक्सपेरिमेंट्स किए.
with those tools, or at the end after trial and error, like not that much trial and error, mental trial, अब ज़ाहिर है वो फूड उन्होंने उसी दिन जो है उसी टाइम पे अचीव कर लिया, ठीक है. They didn't wait for months or weeks to adjust with trial and error like that in operant conditioning, but उन्होंने सडनली इसका सलूशन देखा एंड दे पाइल्ड अप द बॉक्सेस एंड अटेंड द फूड. इसी तरह विद स्टिक दे ट्राइड टू गेट द फूड. और एक एग्जांपल यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग है दैट एक मेल था, ही वाज नेम्ड सुल्तान. He tried unsuccessfully for even an hour to obtain food with 2 bamboo poles that were each too short. अच्छा, उसके केज के साथ बनाना रखा गया एंड 2 बम्बू पोल्स रखे गए, बट बोथ वर शॉर्ट टू रीच दैट फूड. उसने क्या किया कि ही अपीयर्ड टू गिव अप एंड द एंडेवर एंड सैट लेथार्जिकली ऑन द ग्राउंड प्लेइंग विद द पोल्स. उसने इतने ट्राई किए कि वो थक गया और थक के जो है वो बैठ गया. वो जो सुल्तान था, जो मेल मंकी था, वो क्या कहते हैं, जब बंदा थक जाता है तो साइड पे बैठ के बस वो उन पोल्स के साथ खेल रहा था, ठीक है. सडनली वाइल ही हैपेंड टू बी होल्डिंग द पोल इन ईच हैंड, ही अपेरेंटली रियलाइज दैट एंड ऑफ वन कुड बी इंसर्टेड इनटू दैट ऑफ द अदर, सो मेकिंग अ लॉन्गर इम्प्लीमेंट. तो अचानक से जब वो खेल रहा था उन पोल्स के साथ, तो उसके माइंड में आया कि क्यों ना इन दोनों को जोड़ के लंबा किया जाए, और सो इमीडिएटली उसके माइंड में एक सोल्यूशन आया. सो ही रश्ड टू द बार्स ऑफ द केज एंड यूज्ड द कनेक्टेड पोल्स टू पुल द फूड. और कुछ नंबर ओकेजन्स पे ये हुआ कि वो बीच में वो दोनों सेपरेट हो जाते थे, बट सुल्तान क्विकली रिकवर्ड द लॉस्ट कंपोनेंट ऑफ द पोल एंड रिफिटेड इट टू द एंड ऑफ द अदर पोल, thus suggesting that he understood the functional potential of joining the two together. अब उसे पता चल गया कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो बीच में जब वो खुल जाते थे वो फिर से उसको अटैच करके एंड फाइनली ही कुड मैनेज टू गेट द फूड. नाउ दिस इज़ इंस्टिंक्ट, जो अचानक उसके माइंड में आया कि जब उसने ही वॉज प्लेइंग अराउंड विद द स्टिक्स एंड ही रियलाइज दैट दे कुड बी जॉइंड टुगेदर. सो नाउ दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इनसाइट लर्निंग. अच्छा, Kohler interpreted the behavior of these chimpanzees in terms of their having perceived new relationships between stimuli, the poles, and outcomes, the food, relationships they had not experienced previously. Okay? For example, the chimpanzees that moved boxes into place then climbed on them might previously have learned the two responses separately that just put them together. This idea has been tested in pigeons. अच्छा, यहाँ पे जो बात बेसिकली डिस्कस की गई है वो ये है कि हमने कहा कि ये एक ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस किया, ये चिंपैंजीज़ ने पहले एक्सपीरियंस नहीं किया गया था, तो दे लर्नड एंड कोप विद द न्यू सिचुएशन. लेकिन फिर ये कहा कि नहीं, ये जो है प्रीवियसली लर्नड एसोसिएशंस भी हो सकती है. अदर्स हैव एक्सप्लेन्ड रिजल्ट्स सच एज कॉलर्स एज कंसिक्वेंस ऑफ प्रीवियसली लर्नड एसोसिएशंस. तो कुछ साइंटिस्ट्स ने कहा कि नहीं, ये ऐसा भी हो सकता है कि पिछले कुछ एक्सपीरियंसेस थे, जो लर्नड एक्सपीरियंसेस थे पहले, एनिमल ने पहले भी इन पोल्स को कहीं जोड़ा था, लेकिन फूड के लिए यूज़ नहीं किया था, लेकिन किसी ओकेजन पे इन पोल्स को जोड़ा था आपस में और उनको यूज़ किया था. तो अभी उसने क्या किया कि सिंपली यहाँ पे पिछले एक्सपीरियंस को यहाँ पे फिट कर दिया फूड ऑब्टेन करने के लिए. तो अब ये क्या है कि प्रीवियसली लर्नड एक्सपीरियंस रिस्पॉन्सेज भी हो सकते हैं, और यहाँ पे दे जस्ट पुट देम टुगेदर. दिस आइडिया हैज़ बीन टेस्टेड इन पिजन्स. अच्छा, अब यहाँ पे ये आइडिया था तो इसको पिजन्स में स्टडी किया गया, और ये एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे करेक्ट निकली. और इसको कैसे पिजन्स के साथ स्टडी किया गया तो ये टेक्स्ट आप रीड कर लें, बट जो इसका मेन पॉइंट है वो ये है कि
पहले पिजन्स को ट्रेन किया गया बॉक्सेस को एक ख़ास स्पॉट की तरफ, जब वो उन्होंने पुश किया तो उनको फूड रिस्पॉन्स रिवॉर्ड दिया गया। और बाज़ दफ़ा उनको विदाउट एनी ग्रीन स्पॉट जब उनको पुश किया गया उन बॉक्सेस को, तो उनको कोई रिस्पॉन्ड नहीं, रिवॉर्ड नहीं दिया। देखिए सिंपल है कि पिजन्स को दो सिचुएशंस दिए गए कि अगर वो एक पर्टिकुलर स्पॉट की तरफ बॉक्सेस को मूव करेंगे तो उनको फूड रिवॉर्ड मिलता है, और कुछ को रिवॉर्ड मिला, और दूसरी सिचुएशन में ये हुआ कि उनको बॉक्सेस पुश करने पे रिवॉर्ड नहीं मिला। दूसरी सिचुएशन में ये हुआ कि पिजन्स को बनानास दिए गए हैंग करके, जैसे कि मकैक्स में था, ये चिंपैंजीज़ में था, और इसी तरह बॉक्सेस रखे गए। बट उन्होंने ट्राई किया, हुआ ये कि आखिर में उनको ऐसे रूम में रखा गया कि वहाँ पे बॉक्सेस भी रखे गए और सस्पेंडेड फूड भी रखा गया। तो उन्होंने क्या किया कि पहले जहाँ पे उनको वो फूड रिस्पॉन्स वो नहीं था जो बनानास वाला था, तो उन्होंने बॉक्सेस को पुश करना सीख लिया था। दूसरे में उन्होंने फूड को गेन करना सीखा। फिर उन्होंने क्या किया कि वाइल जब उनको एक ऐसे रूम में रखा गया कि उनको सीलिंग से फूड हैंग करके दिया गया और बॉक्सेस रखे गए, तो वाइल एट फर्स्ट दे अटेम्प्टेड अनसक्सेसफुली टू स्ट्रेच अप फ्रॉम द फ्लोर एंड गेट द बनाना, दे इवेंचुअली शफल्ड द बॉक्स अलोंग अंडरनीथ द बनाना, क्लाइम्ड अप एंड पैक्ड इट। तो यहाँ पे बर्ड्स ने क्या किया कि जो बॉक्सेस वाला पिछला एक्सपीरियंस था उसको यहाँ बनानास हासिल करने के लिए यूज़ किया, जो उन्होंने पहले यूज़ नहीं किया था। वो पहले उनको सिंपल एक स्पॉट तक लेकर जाते थे उस बॉक्स को, और वहाँ उनको फूड मिलता था। यहाँ तो वो फूड नहीं है, यहाँ तो फूड हैंग कर रहा है। उन्होंने वो बॉक्सेस एक दूसरे के ऊपर रख के वो फूड हासिल किया। अब क्या है, ये एक पिछला एक्सपीरियंस था बॉक्सेस के साथ प्ले अराउंड करने का और फूड हासिल करने का, तो दोनों को कंबाइन करके उन्होंने रिजल्ट हासिल किया और फूड हासिल किया। सो दस अपेरेंटली इनसाइटफुल बिहेवियर कैन बी जनरेटेड फ्रॉम प्रीसीडिंग लर्नड स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। इट मीन्स के जो हमें लग रहा है अपेरेंटली एनिमल्स के अंदर कि दिस इज़ इनसाइट लर्निंग, कि एनिमल ने अपने इंटरनल विजडम को यूज़ करके एक रैपिड सोल्यूशन ढूंढ लिया, ये कोई पिछला लर्नड रिस्पॉन्स भी हो सकता है। ठीक है, जो उन्होंने यहाँ पे इसको पहले पिछला दूसरे सिचुएशन में था, अब यहाँ पे वो इस नए सिचुएशन में उस पुराने एक्सपीरियंस को यूज़ किया। सो वी मे कॉल इट प्रीवियसली लर्नड स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। सो दिस इज़ नाउ दिस इज़ सिंपली अबाउट इनसाइट लर्निंग, और इसके एग्जांपल्स तो बहुत सारे हैं और डिटेल्स भी हैं, बट दैट इज़ इनफ फॉर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नड बिहेवियर। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है, वो पढ़ते हैं, दैट इज़ लर्निंग सेट्स एंड इट कनेक्ट्स टू आवर लाइफ एज ह्यूमंस। जब हम अभी इसको पढ़ेंगे, सो लर्निंग सेट्स क्या है, साइंटिस्ट कहते हैं कि देयर आर प्रीवियसली लर्नड एक्सपीरियंसेस, ठीक है, विद सिमिलर प्रॉब्लम्स इन द पास्ट। और फिर क्या है कि वेरी ऑफ्टन वी solve a problem quickly by applying our experience with the similar problems in the past। तो past experience, past problems के experience को हम use करते हैं अपने प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए। पास्ट एक्सपीरियंस अलाउज अस टू परसीव जनरल रूल्स दैट अप्लाई अक्रॉस द बोर्ड इवन दो ईच इंडिविजुअल प्रॉब्लम वी इनकाउंटर में बी डिफरेंट इन डिटेल्स। देखें क्या होता है कि थ्रू आउट द लाइफ, ड्यूरिंग आवर लाइफ ऐसे सिचुएशंस आते हैं, डिफरेंट सिचुएशंस, कि उनकी सल्यूशन उनकी सेम होती है, सेम मैकेनिज़्म अप्लाई करके हम उनके सल्यूशंस ढूंढ लेते हैं। अब ये सिचुएशंस डिफरेंट होती है बट द रूल्स अप्लाई अक्रॉस द बोर्ड, और उनके जो सल्यूशंस हैं वो सब पे फिट होते हैं। फॉर एग्जांपल, इसी एग्जांपल ऐसी है कि वंस वी हैव बीन शोन हाउ टू सॉल्व सिमल्टेनियस इक्वेशंस विद अ हैंडफुल ऑफ एग्जांपल्स, वी कैन सॉल्व एनी अदर दैट कम आवर वे और सम ऑफ अस कैन। मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एक इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल कैलकुलस हो गया या कोई भी इस तरह एक मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं, तो
विद डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ हम उनको जब सॉल्व करते थे, ठीक है, जब हम उनको सॉल्व करते हैं इतनी वो हो जाती है, उसके साथ फेमिलियरिटी हो जाती है, वो सोल्यूशन फाइंड करना, वो प्रोसीजर हम सीख लेते हैं कि फिर कोई उस टाइप का दूसरा इक्वेशन होता है, लेकिन हम वो पिछले इक्वेशन के जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो रूल्स हैं, वो टिप्स हैं, वो हम यूज़ करके नए सोल्यूशन को सॉल्व कर लेते हैं, because you can relate it to it. These are called learning sets. So in recognizing and applying a general principle like this, we are said to have formed a learning set. तो हमारे माइंड में ह्यूमंस में भी और इसी तरह एनिमल्स में भी लर्निंग सेट्स हो सकती हैं. अदर एनिमल्स सीम्स टू बी एबल टू फॉर्म लर्निंग सेट्स टू. जब ह्यूमंस के अंदर है तो ऑब्वियसली इट कैन हैपन in other animals, and this is one of the explanations to learning, insight learning. ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम ये क्यों learning sets की बात कर रहे हैं, because we have to explain the insight behavior. So explanations इसकी ये है, आप याद रखें कि बायोलॉजी में, behavioral sciences में nothing is hard and fast rule, nothing is full and final, nothing is like a physical laws. हम theories पढ़ते हैं, हम concepts पढ़ते हैं, but we apply them to different species in different situations. जब हम उसको experimentally observe करते हैं, then we give explanation to that behavior. तो often इन एनिमल बिहेवियर आपने देखा होगा कि हम एक सिचुएशन पढ़ते हैं, हम एक बिहेवियर पढ़ते हैं, फिर हम उस बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं कि हाँ व्हाट इज़ द लॉजिकल एक्सप्लेनेशन टू दैट बिहेवियर. और तो वो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है फॉर इनसाइट लर्निंग, और वो हमने पढ़ी कि लर्निंग सेट्स जो है वो डेवलप हो जाती है पास्ट एक्सपीरियंस, जो कि एनिमल उसको फिक्स कर सकते हैं. और बाज़ टाइम ऐसा भी हो सकता है कि अपनी इनसाइट विदाउट एनी पास्ट एक्सपीरियंस, अपने इनसाइट को यूज़ करके एनिमल, जैसा कि ये चिंपैंजी में एग्ज़ाम्पल में हमने पढ़ा कि कम्बिनेशन ऑफ द टू स्टिक्स. ओके, अब लर्निंग सेट्स एंड इंटेलिजेंस, ये आप पढ़ सकते हैं अपनी नॉलेज के लिए. वी कांट गो इनटू इट्स डिटेल्स, यू कैन स्टडी इट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. नोट्स विल बी अवेलेबल to you. Or okay, now another type of learning behavior is very important. We call it social learning. And why we are learning it along with insight learning? Because it is very much associated, it is very much related to insight learning. And Thorpe, again ये नाम हम बार बार रिपीट करें, Thorpe was the one, आप इसको कह सकते हैं कि he was the founder, he was the father of learned behaviors, and he first categorized them. जितने भी learned behaviors हैं, learned behaviors again अगर हम थोड़ा सा इसको रिपीट करें तो those behaviors, those responses which have environmental factors, which have environmental substance to that rather than genetic or innate. तो जो learned behaviors हैं उनको थॉर्पी ने फर्स्ट कैटेगराइज किया था. हम वही कैटेगरीज पढ़ रहे हैं, हमने उसमें काफ़ी पढ़ लिया. वी आर गेटिंग टूवर्ड्स द एंड, बट थॉर्पी इंक्लूडेड imitation in his definition of insight learning, by which he meant a heterogeneous range of behaviors involving some degree of copying from other individuals. Social learning क्या है? Learning from the members of society. Simple, ठीक है. तो imitation एक behavior है. imitation इसको अगर हम उर्दू में कहें तो नकल उतारना या जो है पैरोडी करना, ठीक है. तो imitation इज़ अ बिहेवियर जो हम इनसाइट लर्निंग के उसको डिफिनेशन में रखते हैं. बट थोड़ा सा इसमें क्या है हम देखते हैं. बाय विच ही मेंट हेट्रोजीनियस रेंज ऑफ बिहेवियर्स है जिसमें सम डिग्री ऑफ कॉपीइंग फ्रॉम अदर इंडिविजुअल, दूसरे इंडिविजुअल्स से. हमने इनसाइट की बात की, तो इनसाइट पास्ट एक्सपीरियंसेस से भी हो सकता है, इंटरनल विजडम से भी हो सकता है. बट
अगर ये इनसाइट लर्निंग, ये एब्रप्ट लर्निंग, ये शॉर्टकट लर्निंग, सॉल्यूशन फाइंड करना, इफ़ दिस इज़ obtained by copying other individuals of the society, we call it social learning. ओके, सोशल बिहेवियर इज़ समथिंग एल्स, यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं करना इसको. सोशल बिहेवियर वो एक अलग, वो बिहेवियरल इकोलॉजी का टॉपिक है, वो हम एंड में पढ़ेंगे कि एनिमल जो है वो सोसाइटी में उनमें हायरार्की होती है. जैसे हनी बीज़ का सोशल बिहेवियर है, इसी तरह हर डिफरेंट ग्रुप्स में सोशल बिहेवियर्स हैं, वो अलग है. यहाँ पे है सोशल लर्निंग, लर्नड बिहेवियर विच हैव सोशल एलिमेंट अटैच टू इट. कि इंस्टिंक्ट लर्निंग है, लेकिन एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को कॉपी करके वो सीखते हैं. सो वी कॉल इट सोशल लर्निंग. ओके, सो बाय social companions or indeed any other individual can be a rich source of information about how to behave. Okay, by exploiting this information, exploiting mean using this information, an animal can save time and energy that it would otherwise have to invest in learning the task for itself. एक बड़ा मशहूर एक कॉल है कि लाइफ में ज़रूरी नहीं कि आप ख़ुद जो है टाइम लगा के और अपने साथ एक्सपीरियंस करके आप कोई चीज़ सीखो. लाइफ में दूसरों की एक्सपीरियंसेस से भी सीखना चाहिए. लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू एक्सपीरियंस ईच एंड एवरीथिंग. यू हैव टू लर्न फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंस एज वेल. तो यहाँ पे भी वही सिचुएशन है कि एनिमल्स क्या करते हैं कि दूसरे एनिमल्स को देख के उनको एज एन इंफॉर्मेशन सोर्स यूज़ करके और उनको एज एन इंफॉर्मेशन सोर्स यूज़ करके वो अपने लिए उसको यूज़ कर दें, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम ऑन लर्निंग इट फॉर इटसेल्फ. Okay, so what kinds of things are learned socially and how might they benefit the learner? अब हमने पढ़ा कि ओके, सोशल लर्निंग में imitation है, when one individual copies the behavior of another individual. So what kinds of these things are and how might they benefit the learner? So among the obvious contenders are skills associated with finding and consuming food, avoiding predators, choosing a mate, and communicating. Such kinds of these are the domains, these are the areas where animals can imitate other individuals. Now इसके हम one by one, we can't go into the details of everyone that हम सबके examples पढ़ें, तो हम पढ़ेंगे examples भी, लेकिन एक दो तो हम सबके डिटेल में नहीं जा सकते. बट थोड़ा सा अगर हम देखें तो सोशल लर्निंग एंड फीडिंग बिहेवियर, तो फॉरेजिंग जो है मोस्टली एक अगर हम एज एन एग्ज़ाम्पल पढ़ें तो हमने कहा कि दे कैन बेनिफिट की हमने बात की बेसिकली. तो बेनिफिट कुछ भी हो सकता है, वट एवर द बेनिफिट मे बी आउट ऑफ दीज. So foraging efficiency appears to be one of the main selection pressure favoring social aggregation among animals. तो ये जो foraging है, food is that integral part of an animal life that it leads to like a healthy food, enough food and appropriate food gives to healthy life, and then it gives rise to reproductive success. And reproductive success means we call here selection pressure. तो हम अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम नेचुरल सिलेक्शन की भी बात करें तो reproductive success leads to natural selection. So food is very important. Foraging efficiency and social information about the whereabouts and quality of food is a major factor enhancing feeding efficiency in foraging groups. So one of them is social learning for feeding behavior, और इसके हम आगे examples पढ़ेंगे. Right now we are not going into the details of this foraging thing, और कुछ बहुत सारे इसमें experiments हैं. Anyhow, let's
get into the types of imitation, और थोड़ा सा we have to have knowledge about how imitation can be divided into different groups. So बहुत important बात यहाँ पे एक वो ये है कि जैसे हमने कहा कि सोशल लर्निंग आपने कंफ्यूज नहीं करना उसको सोशल बिहेवियर के साथ, बिकॉज सोशल बिहेवियर इज़ अनदर सेपरेट टॉपिक, और सोशल बिहेवियर एक बड़ा एक डिफरेंट वो है कि बिहेवियरल इकोलॉजी के साथ डील करता है, जिसमें पूरी लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल को हम स्टडी करेंगे कि वो किस तरह से सोसाइटी में रहते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि लर्नड बिहेवियर्स, वो लर्नड बिहेवियर जो कि लर्निंग के थ्रू आते हैं, सोशल इंटरेक्शन के थ्रू आते हैं, वो सोसाइटी के इंडिविजुअल को देख करके उससे कॉपी करते हैं। इसी तरह इमिटेशन के साथ एक और बिहेवियर है, आपने उसको कंफ्यूज नहीं करना उसके साथ, दैट इज़ मिमिक्री। सो इमिटेशन एंड मिमिक्री के अंदर फिर डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? तो मिमिक्री हम फिर पढ़ेंगे, वो मोर और लेस बिहेवियरल इकोलॉजी में आता है। तो इमिटेशन ये है कि एक इंडिविजुअल ऑफ सोसाइटी और इकोसिस्टम, एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल का बिहेवियर कॉपी करता है, उसके एक्शंस कॉपी करता है। वी कॉल इट इमिटेशन। मिमिक्री क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म फिज़िकली दूसरे ऑर्गेनिज्म की तरह बन जाता है, उसकी शक्ल इख्तियार करना, उसको हम मोस्टली कहते हैं कि कैमोफ्लाजिंग उसको कहते हैं, कि एक एनिमल है और वो दूसरे एनिमल की तरह ख़ुद को बना लेता है, उसकी तरह एक्ट नहीं करता, अपेरेंटली फिज़िकल शेप, कलर, उसमें किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की मिमिक्री करता है। ठीक है, कि आया देख के लगता है कि ये तो ये वाला ऑर्गेनिज्म है, हालांकि वो दूसरा होता है। एग्जांपल इसकी क्या है? ये नॉर्मली प्रीडेटर्स को अवॉइड करने के लिए कैमोफ्लाजिंग होती है, वो अलग हम पढ़ लेंगे किसी दिन। लेकिन इस तरह के कुछ एग्जांपल्स हैं कि कुछ बटरफ्लाइज़ की स्पीशीज़ हैं जो कि ट्री बार्क्स पे बैठ के, तो उनके विंग्स पे आउल के आइज़ जो हैं वो बनी होती है, आउल। तो जब वो खोल के विंग्स बैठते हैं ट्रीज़ के ऊपर, तो इट सीम्स लाइक आउल इज़ सिटिंग ऑन द ट्री। तो कोई अदरवाइज़ कोई बर्ड जो है उस पर अटैक कर सकता था, लेकिन नाउ दैट इज़ मिमिकिंग एन आउल, जो कि एक बटरफ्लाई है, बट बटरफ्लाई मिमिक्स आउल टू अवॉइड प्रीडेटर, वी कॉल इट मिमिक्री। इमिटेशन क्या है कि वो फिज़िकली उसकी तरह नहीं बनता, बल्कि वो उसके दूसरे इंडिविजुअल के एक्शंस को कॉपी करता है, वी कॉल इट इमिटेशन। सो थॉर्पी इन 1963 इंक्लूडेड अ रेंज ऑफ सोशल इफ़ेक्ट्स ऑन बिहेवियर इन हिज डेफिनेशन ऑफ इमिटेशन। तो कुछ डिफरेंट टाइप्स इसमें यह है कि सोशल फैसिलिटेशन एक टाइप यह है कि एन एनिमल में ऑलरेडी पोजेस अ पर्टिकुलर बिहेवियर इन इट्स रिपर्टायर। रिपर्टायर मीन ज़ख़ीरा, माइंड में जो बिहेवियर्स का ज़ख़ीरा है, पर्टिकुलर जो है एक्सपीरियंसेस का, बट बिकम मोर लाइकली टू परफॉर्म इट एज अ रिज़ल्ट ऑफ सीइंग इट परफॉर्म बाय अनदर इंडिविजुअल। अच्छा, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग टाइप है, और ये आप ख़ुद से फिर भी रिलेट कर सकते हैं ह्यूमंस के साथ, और वो ये है कि बाज़ दफ़ा एक बात हमारे माइंड में होती है, पहले से होती है, लेकिन हमें उस तरफ ध्यान नहीं होता, लेकिन जब कोई दूसरा करने लगता है तो हमारा भी दिल करता है और हम भी करने lग जाते हैं वो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ बर्ड इज़ गिवन वाटर, फॉर एग्जाम्पल अदर्स दैट सी इट बाथिंग मे स्टार्ट टू वॉश देमसेल्फ इवन दो दे हैड वाटर प्रेजेंट ऑल द टाइम। फॉर एग्जाम्पल, कुछ बर्ड्स हैं और उनमें एक ऐसे बर्ड को आपने वाटर प्रोवाइड किया जो उसके पास पहले नहीं था, तो वो उसके साथ बाथिंग स्टार्ट कर देता है। तो वो बर्ड्स जो ऑलरेडी वाटर हैबिटेट में रहते थे, वो पहले बाथिंग नहीं करते, लेकिन उसको देख के दे स्टार्ट टू बाथ। ठीक है, दिस इज़ सोशल फैसिलिटेशन। फॉर एग्जाम्पल, सिमिलरली satiated rats may start to feed again if they see a hungry individual eating। अच्छा, ये तो रेट्स से ज़्यादा ह्यूमन बिहेवियर है। घर में आप कोई चीज़ पका के, कभी फ्राइज़ जो है बना के ट्राई करो, तो सारे उसके ऊपर दौड़ पड़ते हैं चूहों की तरह। ठीक है, सो दिस इज़ सोशल फैसिलिटेशन के भूख नहीं लगी होगी, ठीक है, माइंड में भी नहीं होगा, लेकिन
किसी के पास देख के जो है वो मौत पड़ती है फिर हमें, और हम जो है उसके ऊपर दौड़ पड़ते हैं, तो सारे उसको ना नोच खा के एक एक उठा के चले जाते हैं, ठीक है। और ये बहुत कॉमन है, डिफरेंट आप उसमें देख सकते हैं ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स में। सो सेटिएटेड रेट्स में स्टार्ट टू फीड अगेन इफ़ दे सी अ हंग्री इंडिविजुअल ईटिंग, ठीक है। अब ये तो बहुत ही एक कॉमन है। इसी तरह द इन्फेक्शियसनेस ऑफ यॉनिंग इज़ अ फेमिलियर एग्जाम्पल इन ह्यूमन्स में अगर कोई बंदा जमाइया ले रहा है, ही इज़ टायर्ड, और उसको देख के आपको भी जमाई आ जाती है, ठीक है। ऐसा होता है, किसी बंदे को थकावट से जमाई लेते हुए आप भी अंदर से आपका भी दिल करता है कि मैं भी सो जाऊं, ठीक है। सो ऐसा होता है कि कोई बंदा सो रहा हो और झटके वो ही इज़ लाइक उसका हेड जो है वो इधर उधर फॉल करे तो आपको भी नींद आ जाती है। नो, दीज आर काइंड ऑफ बिहेवियर्स वी कॉल सोशल फैसिलिटेशन एंड टाइप्स ऑफ इमिटेशन। सो लोकल एनहांसमेंट इज़ अनदर टाइप। Animals may direct their activities towards a particular part of the environment as a result of responses by others. अच्छा, अब यहाँ पे वही है कि वो दूसरे एनिमल्स को देख के बिहेव करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, बट टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। पूरे का पूरा बिहेवियर कॉपी नहीं करते, बस एक ख़ास एनवायरनमेंट का कोई एक पार्ट जो है उसके साथ वो एसोसिएट करते हैं, लाइक द स्प्रेड ऑफ मिल्क बॉटल्स ओपनिंग टिट्स एन एग्जांपल। अच्छा, दिस इफेक्ट इज़ वाइड स्प्रेड इन फॉरेजिंग बिहेवियर एंड कैन बी इंपॉर्टेंट इन लोकेटिंग कंसील्ड और नॉवल फीडिंग साइट्स। ये एक एग्जांपल है, इसके डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बर्ड्स होती हैं, टिट्स इज़ अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स, और वो क्या करते हैं कि दे ओपन मिल्क बॉटल्स को ऊपर से उसके सर में छेद करके वो उसमें से मिल्क, तो एक को देख के ये एक्सपेरिमेंट किया गया, और एक ने जब वो खोला उनको मिल्क बॉटल्स दिए गए विद लेड, और उसको ओपन करके सब ने फिर उसकी तरफ वो सारे रिपीट करते हैं इस प्रोसेस को। बट क्या है, दिस इज़ फॉर अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, और वो क्या है कि एक टाइम पे उनको फूड दिया गया, उन्होंने कॉपी किया। सो ये इम्पोर्टेंट है किस चीज़ में, कि लोकेटिंग न्यू नोवेल फीडिंग साइट्स इन द एनवायरनमेंट, के वो एक जगह को ट्राई करते हैं और फिर उनको नए फीडिंग साइट्स का पता चलता है ना। ट्रू इमिटेशन क्या है, जो एक्चुअल इमिटेशन है वो क्या है कि थॉर्पी रिजर्व द टर्म इमिटेशन फॉर द कॉपिंग ऑफ अदरवाइज इम्प्रॉबेबल utterances or acts. Vocal mimicry in birds and food washing in primates are frequently cited apparent examples. अच्छा, क्या है कि true imitation, now this is the main type of imitation जिसमें improbable utterance or acts। अच्छा, वो पहले में हमने पढ़ा कि पास्ट एक्सपीरियंस मतलब माइंड में पहले से होती है वो चीज़, लेकिन दूसरे को देख के फिर से वो करने को दिल करता है। दूसरा हमने पढ़ा कि एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट में, जैसे लोकल मीन एक ख़ास जगह से रिलेटेड। ट्रू इमिटेशन में ये है कि पहले ना वो चीज़ माइंड में पहले से थी, ना वो कोई ख़ास लोकल चीज़ है। नाउ दिस इज़ द इम्प्रॉबेबल, लाइक उसकी प्रोबेबिलिटी पहले नहीं थी उस एक्शन की, लेकिन कोई नया एक्शन एनिमल देख के कहता कि यार ये तो बड़ा एक मतलब काम का बिहेवियर है, तो वो क्या कहते हैं, एक न्यू बिहेवियर जो पहले से माइंड में एनिमल के नहीं था, और वो फिर देख करके उसको कॉपी करते हैं। सो वी कॉल इट ट्रू इमिटेशन। सो वोकल मिमिक्री इन बर्ड्स, हमने कहा, हम बारह ये एग्जांपल पढ़ चुके हैं कि जो सिंगिंग इन द बर्ड्स है, सॉन्ग बर्ड्स में वो प्लास्टिक सॉन्ग, और वो जिसकी 3 स्टेजेस हैं, ठीक है, कि जो न्यूली हैच्ड बर्ड्स होते हैं, दे मिमिक देयर एडल्ट्स थ्रू एनवायरमेंटल लर्निंग, थ्रू इमिटेशन, और फिर आफ्टर अ फ्यू ईयर्स दे डेवलप द फुली डेवलप्ड सिलेबल्स ऑफ द सॉन्ग्स दैट बर्ड्स हैव। स्टार्ट में वो सिर्फ चिरपिंग करते हैं, फिर उसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, तो दैट इज़ अ टाइप ऑफ, अब उनको जो यंग हैच्ड बर्ड्स हैं, सॉन्ग बर्ड्स, दे डिडंट हैव प्रायर एक्सपीरियंस फॉर सिंगिंग, बट दे आर लर्निंग न्यू बिहेवियर, दैट इज़ सिंगिंग। ओके, सिमिलरली फूड वॉशिंग इन प्राइमेट्स,
एक एग्ज़ाम्पल है और बड़ा फेमस एग्ज़ाम्पल है जो हम अभी पढ़ेंगे। सो द एग्जिस्टेंस, अच्छा अब यहाँ पे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है। द की डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रू इमिटेशन एंड लोकल इन्हांसमेंट क्या है। अब ट्रू इमिटेशन और लोकल इन्हांसमेंट में क्या डिफरेंस है, इज़ दैट इन लेटर लाइक इन लोकल इन्हांसमेंट द ऑब्जर्वर हैज़ लर्नड समथिंग अबाउट द इन्वायरमेंट। वो इन्वायरमेंट के बारे में सीखता है कि अच्छा यहाँ पे इन्वायरमेंट के इस पोर्शन में हमें फूड मिलेगा, दैट इज़ समथिंग हैज़ हैपेंड हेयर। लाइक एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट है, कॉर्नर ऑफ द हैबिटेट है जहाँ पे उनको फूड मिला, सो दे लर्न फ्रॉम अदर्स, ठीक है, कि अच्छा यहाँ पे फूड है, सो दे लर्न समथिंग अबाउट द इन्वायरमेंट। बट इन ट्रू इमिटेशन इट इज़ अ बिहेवियर बट नॉट नेसेसरीली बिहेवियर। अब यहाँ पे क्या है, लाइक लोकल एनहांसमेंट में पूरा बिहेवियर नहीं सीखते, इट हैपन्स बिकॉज ए डिड दिस। फॉर एग्जाम्पल के समथिंग हैज़ हैपन्ड हेयर बट नॉट नेसेसरीली अ बिहेवियर दैट इट हैपन्ड बिकॉज ए डिड दिस। ऐसा नहीं है कि एक एनिमल इस वजह से वो बिहेवियर करता है कि दूसरे एनिमल ने इसको परफॉर्म किया, नहीं, बट उसको सिर्फ ये पता चलता है कि अच्छा ये जगह है जहाँ पे उसने एनवायरनमेंट के बारे में कुछ सीख लिया कि अच्छा यहाँ पे फूड अवेलेबल है। वो पूरा बिहेवियर कॉपी नहीं करता, बल्कि ट्रू इमिटेशन में पूरा बिहेवियर कॉपी होता है। सो एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रू इमिटेशन एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर इंटेलिजेंस इन नॉन ह्यूमन एनिमल्स आर द सब्जेक्ट ऑफ ऑन गोइंग डिबेट। तो ये बेसिकली ट्रू सब्जेक्ट ऑफ द डिबेट है। अच्छा हम इसको कंक्लूड करते हैं, मज़ीद इसके डिटेल्स में नहीं जाते, जितना था वो इनफ है। एक इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे एग्ज़ाम्पल और वो हम पढ़ते हैं, दैट इज़ वॉशिंग बिहेवियर इन प्राइमेट्स। उसको हमने स्टार्ट में भी डिस्कस किया था जब हम इन नेट और लर्नड बिहेवियर की एक इंट्रोडक्टरी क्लास में हमने छोटे छोटे हमने उसके एग्ज़ाम्पल्स पढ़े थे। तो उसमें हमने एक ये भी पढ़ा था कि इमिटेशन होती है और पोटैटो वॉशिंग बिहेवियर इन जापानीज़ मकैक्स। ओके, यहाँ पे क्या है कि इमिटेशन में एक एग्ज़ाम्पल, अच्छा थोड़ा सा इसको भी रीड करते हैं, अब बल्कि रहने दे, ये आप ख़ुद रीड कर ले, हाईलाइट किया है मैंने उसको। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम ग्राफ से शो कर रहे हैं इसको, द स्प्रेड ऑफ पोटैटो वॉशिंग इन अ ग्रुप ऑफ जापानीज़ मैकैक्स। इधर देखें, एक्स एक्सिस पे वी हैव ईयर्स 1953 से लेके 1958 तक ये स्टडी की गई। कितने सालों की स्टडी है? 5 ईयर्स की ये स्टडी है। और नंबर ऑफ़ मंकीज़ यहाँ पे प्लॉट किया गया है वाई एक्सिस पे। तो आप देखें जो फर्स्ट लाइन है दैट शोज़ के अच्छा स्टोरी ये है कि मकैक्स को, जापानीज़ मकैक्स को क्या किया गया कि उनको जो पोटैटोज़ हैं फील्ड में जाकर के उनको पोटैटोज़ दिए गए, ठीक है, एज अ फूड सोर्स। अ लार्ज ग्रुप ऑफ मकैक्स वर प्रोवाइडेड विद पोटैटोज़। नाउ क्या हुआ कि पोटैटोज़ के जो ट्यूबर्स होते हैं तो उनके साथ सैंड अटैच हो जाती है, रेत लग जाती है उसके साथ। तो इट वाज ऑब्जर्व्ड कि बाज़ जो हाफ ऑफ द मंकीज़ मकैक्स दे एट इट लाइक एज इट इज़, ठीक है, सैंड के साथ ही उसको खाने लग गए। एक कुछ फीमेल्स थी, उन्होंने क्या किया, उन्हीं में से कि वो जा कर के उनको वाटर में जाके रिवर साइड पे जाके उन्होंने वाटर में उसको वॉश करके फिर उसको खाने लगे। तो बहुत सारे पहले उसके अपने ऑफ स्प्रिंग्स और इंडिविजुअल्स और उसके क्लोज ग्रुप के जो मकैक्स थे उन्होंने उसको कॉपी करना स्टार्ट किया, वो भी उसको धो के खाने लग गए, ठीक है। और इसी तरह ये जो वॉशिंग बिहेवियर है, वॉशिंग पोटैटोज़, ये उनके अंदर बाय ईयर्स जब उनको हर साल स्टडी किया गया तो ये बिहेवियर उनमें बढ़ता गया। आप ये ग्राफ देख सकते हैं कि जो सॉलिड बुलेट्स हैं, इट शोज़ के नॉट वॉशिंग, वो मकैक्स जो वॉशिंग नहीं करते तो उनकी तादाद पहले भी 20 इंडिविजुअल्स, ठीक है, इसी तरह 1954 में भी 19, इसी तरह वो उनकी तादाद जो है वो सेम रही, ठीक है, कोई ख़ास खातिर खा उसमें डिफरेंस नज़र नहीं आया इन 5 साल में जो बग़ैर धोए खा रहे थे। सो वो उनका नंबर यूनिफॉर्म रहा। इधर देखें दूसरे ग्राफ में जो वाइट बुलेट से शो हुआ है,
ये क्या है बेसिकली, यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हैं कि पहले 1953 में इनकी तादाद ज़ीरो थी, ऐसे कोई मकैक्स नहीं थे जो कि वॉश करके खाते थे, लेकिन जब वो उस इंडिविजुअल ने, उस फीमेल ने उसको धो के खाना स्टार्ट किया तो ईच ईयर द नंबर ऑफ वॉशिंग मकैक्स दैट इंक्रीज्ड and increased with a tremendous impact, like from 0 to 20, 15, 20 individuals, they learned to wash the potatoes. Now this is true imitation in terms of the Japanese macaques. So इसकी explanation आप खुद इधर पढ़ लें फिर नोट्स में, नहीं है इसकी ज़रूरत। और एक और लास्ट छोटा सा एक टॉपिक है, इसको भी पढ़ते हैं तो हमारा आज का टॉपिक कंक्लूड हो जाएगा। दैट इज़ टीचिंग। टीचिंग इज़ अ टाइप ऑफ इमिटेशन, सॉरी, अ टाइप ऑफ ट्रू इमिटेशन, ठीक है। बट थोड़ा सा डिफरेंस है, वो क्या है इसमें कि टीचिंग एज इट्स नेम इंडिकेट्स, टीचिंग सिखाना, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है दोनों में, हम पहले वो आपको मैं शॉर्टली समझाता हूँ। ओके, इमिटेशन में एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को देख के उसका बिहेवियर कॉपी करता है, दैट इज़ फाइन। लेकिन उसमें क्या होता है कि वो जो एनिमल सीखता है, जो दूसरा एनिमल जिसको देख के वो दूसरा सीखता है, वो डेलिबरेटली इंटेंशनली उसको नहीं सिखाता, वो अपना काम करता है, वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है, दूसरे उसको देख के कॉपी करते हैं, दे आर कॉपी कैट्स, ठीक है। इसने नहीं कहा उनको कि मेरा बिहेवियर कॉपी करो, लेकिन दूसरे इंडिविजुअल्स को उसमें कोई फ़ायदा नज़र आता है उस बिहेवियर में, तो वो अपने फ़ायदे के लिए बग़ैर उसके बताए हुए वो खुद ही उसको कॉपी करते हैं, वी कॉल इट इमिटेशन। अब टीचिंग में क्या है कि एक एनिमल दूसरे इंडिविजुअल को, एक इंडिविजुअल ऑफ द सोसाइटी दूसरे इंडिविजुअल को डेलिबरेटली इंटेंशनली टीच करता है कि ऐसा करो, ठीक है। फ़र्क है दोनों में, क्यों करेगा वो। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि टीचिंग इज़ अ टाइप ऑफ ट्रू इमिटेशन विच इज़ फाउंड मोस्टली इन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स। जब कोई पेरेंट बच्चों को कोई चीज़ सिखाता है एनिमल्स के अंदर, तो नाउ वी विल कॉल इट टीचिंग, ठीक है। तो अब ये सारा कुछ जो मैंने एक्सप्लेन किया, जो आपको बताया, ये डिफरेंस यही यहाँ पे एक्सप्लेन हुआ है। और थोड़ा हम इसको पढ़ लेते। अच्छा ठीक है, यही है बेसिक डिफरेंस, यही है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। वो ये है कि टीचिंग इज़ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ इमिटेशन जिसमें, अच्छा एक पॉइंट यहाँ पे ये है कि कुछ एनिमल को कॉस्ट भी हो सकता है, ठीक है। जो सिखाने वाला जो टीचर है यहाँ पे, वो टीचर कोई मदर होगी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस ये ऑफस्प्रिंग की मदर होती है जो कि उनको डेलिबरेटली इंड्यूसिवली कुछ सिखाती है कि ऐसा करो, विच माइट हैव सम बेनिफिट फॉर हर ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। ये मेल भी हो सकता है। पैटर्नल बिहेवियर, मैटरनल बिहेवियर, पैटर्नल एंड मैटरनल केयर इज़ लाइक, वो हम सोशल बिहेवियर में पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पे तो बात यह है कि एनिमल को कुछ हार्म भी हो सकता है। यहाँ पे एग्जांपल है डोमेस्टिक चिकन्स की, और वो डोमेस्टिक जो हैंस हैं, और अच्छा ये एक इधर देखें, डोमेस्टिक चिकन से पहले एक एग्जांपल है, और वो हम ज़रा इसको रीड करते हैं तो हम अपने टॉपिक को फिर कंक्लूड करते हैं। देयर शुड बी सम कॉस्ट टू द डाइडैक्टिक एक्ट टू द टीचर। डाइडैक्टिक वर्ड मीन्स डिज़ाइंड और इंटेंडेड टू, वो एक्शन, डाइडैक्टिक एक्ट वो एक्शन जो हम सिखाने के गरज से कोई काम करते हैं, वो एक्शन जिसमें हमारा मकसद किसी को कुछ सिखाना होता है, वी कॉल इट डाइडैक्टिक एक्ट। सो देयर शुड बी सम कॉस्ट टू द डाइडैक्टिक एक्ट टू द टीचर। मतलब जो टीचर होता है, या इस केस में जो इंडिविजुअल टीच कर रहा होता है, उसको कोई कॉस्ट भी हो सकता है, कोई नुकसान भी हो सकता है, बट ऑल्सो सम रिप्रोडक्टिव बेनिफिट। बेनिफिट ये हो सकता है, कॉस्ट क्या हो सकता है कि वो उसको सिखाते हुए ख़ुद भी जो है एनर्जी यूज़ करता है, ठीक है। हम आगे चिकन की एग्जांपल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे यह है कि रिप्रोडक्टिव बेनिफिट,
उसके ऑफस्प्रिंग्स जो है वो उसका फ़ायदा ये होगा कि उसके ऑफस्प्रिंग्स अच्छा परफॉर्म करेंगे, दे विल सर्वाइव। जब वो सर्वाइव करेंगे तो उनकी स्पीशीज़ आगे प्रमोट होगी। सो दिस इज़ रिप्रोडक्टिव बेनिफिट। हैंस द इंट्यूटिव likelihood of it occurring between close relatives। इंट्यूशन किसे कहते हैं? इंट्यूशन कहते हैं कोई चीज़ जब आप बग़ैर किसी लालच के और दिल से करते हैं, ठीक है, हम उसको लगन कहते हैं। इंट्यूशन मीन लगन। तो यहाँ पे पेरेंट्स जो है वो लगन से बच्चों को सिखाते हैं। एंड इट इज़ लाइकलीहुड इफ़ ऑफ इट इज़ अकरिंग बिटवीन क्लोज रिलेटिव्स। और ये जो टीचिंग वो इमिटेशन है जो कि क्लोज रिलेटिव्स के बीच में होती है, ठीक है, बहुत सिंपल। द मोस्ट लाइकली कॉन्टेक्स्ट इन विच टीचिंग माइट इवॉल्व आर दोज वेयर कॉम्प्लेक्स स्किल्स मस्ट बी लर्नड बट टेक अ वाइल टू परफेक्ट। जैसे हमने सॉन्ग बर्ड्स में पढ़ा, अब वो मोस्टली अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, तो नाउ दिस इज़ टीचिंग। और जो पेरेंट्स हैं वो भी उनको डिलिबरेटली उनके सामने सिंग करते हैं ताकि वो सीखे। इसी तरह हंटिंग, जब हमने वो डॉक्यूमेंट्री प्ले की थी माइग्रेशन की, आपने देखा था कि जो लायनेस होती है वो बेसिकली ट्रेन करती है जो यंग फीमेल कब्स होती हैं, तो उनको स्किल सिखाती है, हंटिंग स्किल्स, ठीक है। सो नाउ वो हंटिंग इज़ इननेट बिहेवियर, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। हंटिंग बिहेवियर इज़ इननेट बिहेवियर बट दैट इज़ पॉलिश्ड बाय लर्निंग। विच लर्निंग? दैट इज़ इनसाइट लर्निंग। इनसाइट लर्निंग में कौन सी लर्निंग? ट्रू इमिटेशन। और इमिटेशन के अंदर दैट इज़ टीचिंग बाय द पेरेंट, ठीक है। हंटिंग स्किल्स, फॉर एग्जांपल, देयर इज़ मच एनेक्डोटल एविडेंस दैट प्रीडेटर्स फ्रॉम डोमेस्टिक कैट्स टू चीताज, डोमेस्टिक कैट से लेकर चीता तक, जो वाइल्ड कैट्स हैं, बिग कैट्स हैं, वहाँ तक जो है ये आपको नज़र आएगा ये बिहेवियर। इसी तरह ऑस्प्रेज एंड मीरकट्स, ये सारे एनिमल्स हैं जो कि ये टीच देयर ऑस्प्रिंग्स अबाउट व्हाट टू कैच एंड हाउ टू कैच इट। Chimpanzees also appear to teach infants the knack of using tools to crack nuts, for instance by providing tools when infants are next to a suitable animal or orienting nuts properly when infants fail to crack them। तो chimpanzees अपने बच्चों को नट क्रैक्स करना सिखाते हैं। इसी तरह डोमेस्टिक चिकन्स में आपने देखा होगा कि घरों में जो मुर्गियाँ होती हैं उसमें भी आप देख सकते हैं कि जो चिकन हो वो जो हैन होती है वो अपने एक बच्चों को पैकिंग द फूड, उनको फूड पिक करना सिखाती है। तो क्या करती है कि एक फूड आइटम उसको बीक में पकड़ के उसको ज़मीन पे बार बार, एक ही वो ग्रेन होता है तो उसको बार बार ज़मीन के साथ देती, मारती और उठाती है ताकि, और एक ख़ास बिहेवियर शो करती है, ठीक है। आप इसमें पढ़ लें, ये सारा पैराग्राफ उसके बारे में है, ठीक है। और इसमें यह है कि वो ताकि वो सिखाए, चिक्स आर अट्रैक्टेड बाय द डिस्प्ले एंड थ्रू लोकल एनहांसमेंट। वही लोकल एनहांसमेंट वाली एग्जांपल यहाँ पे भी फिट हो रही है। एंड दे स्टार्ट टू पैक द फूड। So the display appears to be costly to the mother. It takes time and energy away from her own feeding and may attract predators. But chicks to seem learn about food item presented by a hen. So conclusively, that was all about insight learning. फिर insight learning के साथ हमने simultaneously कुछ imitation, social learning, ठीक है, and imitation, and then all these we have studied, and types of imitation with examples. So that's enough for the insight learning and imitation. Then we will proceed towards imprinting, which is yet another important and most interesting topic of animal behavior. We will be studying that in the next lecture, inshallah. So thank you for your time. See you in the next lecture, inshallah.